सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कैसे मिजाज है? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे और आपका वक्त भी अच्छा गुजर रहा होगा सफ़ीर पाकिस्तान के साथ साथ, क्योंकि हम आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई मुलाकातें कराते हैं और आपको ये बताते हैं कि किस शहर में क्या हो रहा है। और ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो आपको पूरी कम्युनिटी से कनेक्ट करता है। दैट्स वाई कहते हैं कि राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी भरपूर है और आज एक और मुलाकात हमेशा की तरह। आप जानते हैं कि सेहत दौलत है और यह है तन की दुनिया। तन की दुनिया में सब कुछ आता है, आपकी हेल्थ, आपका स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल, सब कुछ। अच्छी ग़िज़ा, अच्छा माहौल, अच्छे लोग, खुशहाल ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही माहिर शख्सियत है, उनका नाम है डॉक्टर जे, यानी कि डॉक्टर जमाल। डॉक्टर जे सीक्रेट आप देखते रहें, कई एपिसोड आए हैं, ये दूसरा एपिसोड है। आज देखते हैं कि डॉक्टर जे आज आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके लाइफ स्टाइल के लिए क्या कुछ लेकर आए। आइए देखते हैं हम सब मिलकर ये खूबसूरत प्रोग्राम। सेहतमंद रहिए, खुशहाल रहिए और हाँ, जे सीक्रेट के साथ रहिए। मुलाज़ फरमाइए ये रिपोर्ट। So now I present to you Dr. J's Secrets, Young and Slim Forever. Life is beautiful. Beauty is life. You are beautiful. You are important. You are the best. Write your own destiny. Welcome to Dr. J Secrets. Today we're going to talk about the beauty from outside when it relates to skin. I've talked about that in some of my previous episodes, but I got a couple of calls, especially with some women, say, we got some skin issues and would like you to talk more about, especially when it comes to wrinkles and stretch marks. So I said we're going to dedicate an episode for beauty of skin related to wrinkles and stretch marks. Whenever you do good diet and exercise, and if you had by any chance accumulated weight in a certain portion of your body, now you're losing it and you're feeling better, but you feel like there's a little extra skin and you would like it to come back to its normal position, get a binder for that area. That means if you're losing nice and good weight on your tummy, get a binder, go to Walmart or go to a store. Don't have to spend too much money, maybe $5 or $10. It's a stretchy cloth with a little Velcro attached on it. So when you put it on the back and bring it to the front, you keep your skin under a little bit of pressure. When you keep your skin under pressure, it starts shrinking and going back in place. So if you have had lost good amount of weight from any parts of your body, like the arms, and some people say, look, I have a little saggy arm, get a little binder or a little wrap for the arm over here. I've had a patient of mine lost about 60, 70 pounds over 3 to 4 months. What I recommended and works great is go to the store and buy a bodysuit which starts from above the knee and go all the way up to the neck, and whatever your size is, get one size smaller. So if a person is size 7 or size 10, they get one size smaller to be size 6 or maybe size 9. When they put that on, that keeps the body skin under a little bit pressure. If you're continuing to do diet and exercise, you would see that after a few days, that bodysuit itself will start feeling a little loose. When that happens, that means the skin has gone into the place where you want it to respond and shape it like that.
When you do that, you can start watching yourself and you say, okay, I'm looking at it, this part is doing good, that part is not doing as good. You can stretch wherever you want to have not that much pressure, and where you want to have the pressure, you can mold your body in that. Done consistently, that will keep your skin under the pressure of small, gentle, consistent pressure. The skin wrinkles will go away, skin stretch marks will go away, and your skin will be nice and healthy and the way you want to shape and form. Coming back to one of the things on the skin health, and I wanted to mention that specifically, is oral health. And the reason I say that, because a little while ago we were discussing with one of my producers, and he said that, how can you relate oral health with something else? Yes, it is good for health and stuff, but is it good for anything else? Absolutely. It has been shown that if your teeth are not good and your oral health is not good, your absorption of vitamin is not very good, and some of the germs from the mouth can go in your blood system and go and get infection in your heart valves and the other areas of the body. So oral health is very important to keep your whole body healthy. This is what I recommend, that a person should literally have a toothbrush with them all during the day. As you know, many people, they would say, oh, I brush my teeth in the morning and then I brush my teeth in the evening. And that is what has been recommended by many, and probably all of the places people have heard and seen. It's a little bit less. This is what a person needs to do. Anytime a person eats anything, they need to rinse their mouth and actually brush their teeth. Now, if a person does not have a toothbrush, what's going to happen? They cannot do that during the lunch. They're out at their work, they're out at the school, and those food particles are now sitting in between the crevices of your teeth, and it's causing infection, it's causing cavities, it's causing the problems. So a person should have an ability to brush their teeth every time they eat something. So if they ate breakfast, yes, you should brush your teeth before you eat the breakfast when you just woke up. But after you eat breakfast, before you go to school or before you're going to work, you should brush your teeth again. You may not want to use the toothpaste each time. That is fine. You may want to brush your teeth in the morning with the toothpaste, but once you ate your breakfast and you're now planning to go to school, go have a little quick trip to your bathroom, get your toothbrush and kind of clean your teeth. Have a toothbrush in your bag or at school or at work, so if you had lunch, after the lunch, when you clean your mouth or go to the bathroom, brush your teeth one time more. When you have supper at home, brush your teeth at time. Don't let the supper food being stuck in your teeth, say from 5:30 onwards till 11 o'clock you are going to sleep. So that's 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11. So that's like 5.5 hours. In those 5.5 hours, the food particles and the germs and the ingredients, and sometimes if you ate something which is too citric or salty or too sweet, they all can start reacting with the gum lines. They can start some interaction with the germs. Some too sweet stuff can actually help the germs grow, and those germs are bad for your teeth. Those germs can go sometime into the cavities and go into your bloodstream and then go to the heart valve and cause problems. So yes, oral health and teeth health is very important, and done right, it will keep you from having any other infections of your heart valves or other parts of the body. The oral health is also related to absorption of the vitamins, because if the person's mucous membranes and the saliva is healthy and good, and some of the vitamins, as we discussed before, they have to be
Best way to take a vitamin is to chew a vitamin and get it mixed with your saliva. If your saliva is good and healthy, it mixes with the vitamins really good. When it goes into the stomach, it gets absorbed. Otherwise, if a person is not keeping their mouth clean and healthy and their saliva is a little thick or a little thin and the salivary glands are a little blocked because the cells have kind of grown over them and the good amount of saliva is not being secreted, then the vitamins and food will not get absorbed. So these are the ways and these are the things the oral health needs to be maintained, and the oral health will keep your vitamins and minerals to get absorbed in the body. And as we talked before, the minerals, vitamins, when they go in the body, they come to your body in the skin and they keep the skin healthy by doing that. One of the things I wanted to mention about while we were doing our program here, a lady has asked me, I get too much foot pain and problem, can you give me a little tip on the foot pain, and is there any secret for the foot pain? Yes, there is. The feet have to take a lot of weight from the person's day-to-day activity and life, especially people who are walking on a concrete and people, ladies, who are wearing a heel. Now, women invariably, especially if they have a tendency to wear a heel, over the time will start having problems in their feet. They may start having bunions or calluses, or depending on their feet being in a more stretched position because the heel, the toe may start turning and causing a problem, and or the little toe starts turning. This is what I recommend. Heels are good. I love fashion, I love heels, but I do not recommend people to wear heels for a long time. These fashion companies, they want you to buy more and more of their shoes, and they want to show it that, oh, look at this fashion model, she's walking on the New York street and she's wearing the heels and she's walking here and walking there and stuff. That don't really happen. What really happens is that fashion model comes in a car, they stand her right there where they have to do that shooting. She's usually wearing her sneakers inside. Then while she have to come out, they put the heel on her, they do 1 or 2 shots and they're gone. So she or nobody is walking on those heels for like 7 or 10 hours for the whole day. That needs to be avoided. If you are wanting to wear the heels, I'd recommend people to keep sneakers in their car. So if they're going to a party, at home, you don't have to wear the heels even when you're going to the car. You may have your shoes in the car, you're sitting in the car, you have done everything in your house, whatever you're doing. When you're going to an event or when you're going to a social gathering or a party, at that time, then you can wear your heels. You go, get your event taken care of, you come back, take your heels off. Because if you keep the heels too long, this is what really happens. The foot's supposed to be straight and the leg is supposed to be like this, so the weight is in a nice and good position and the bones are nice and tight. Now imagine if the heel lifts the foot up like this, all the toes have to turn, and then the pressure and gravity and will start causing calluses on the bottom. The bones will start getting a little deformed. It will start having a pain and a problem. So this is the trick for the heels part. What is the trick? Keep a set of sneakers with you in your car even when you're going to a party. So you only wear the heels when you have to go to the event and come back, and you change them right quick. Probably 2 hours of wearing a heel a day would not be a problem or would not cause any problem. Wearing 6 to 8 hours of heel every day and walking on the concrete and stuff will cause a problem. Not only it will cause a problem in the foot, it can cause problem in the knees, it can cause problem in the back, and all these areas can start hurting. So one of the things what we discuss, get a sneakers, keep it with you, wear the heels for a very brief amount of time, and one of the thing is good diet, good exercise, keeping the weight under control. So when you're wearing the heels, not too much weight and pressure is on your ankles and your toes, and
you don't have the foot pain. This is the foot pain and the heel issue, which one of the people asked me, so I wanted to mention on that. Another gentleman asked me about wrist pains and what is the problem on the wrist if people have heard about carpal tunnel and stuff like that. There's a little secret for that, because in my practice I have seen a lot more wrist pains in the last few years. As you know, everybody has something they are handling with their hands and wrists, especially with computing, with iPads, with telephones. So your wrists are getting a lot of things they are doing which they were not doing before. Good ergonomics, where you're sitting and working, you have a little wrist pad so your wrists are not always moving and touching some areas, and it will keep the wrist pain from coming back. So these are the things we wanted to talk in this episode, and until next time, keep on watching Dr. J's Secrets. Pakistan Day Mela and Festival on Sunday, March 22nd, 11 a.m. to 7 p.m. at Phoenix Club in Anaheim near Honda Center and Angels Stadium. A fun day event for the entire family, games and rides, talent competition, skits and performances, food court and booths for shopping, music and entertainment by top Pakistani artists. Mark your calendar, Sunday, March 22nd for booth reservation and sponsorship. Please call 310-890-0551, 909-576-2982. Brought to you by Pakistan Link and Safire Pakistan. My name is Sultan Ahmed. Most of you know me as a Sam. I'm running for Cerrito City Council. I'm the first Pakistani American who's running from this city. I am proud to be American. Cerrito is a great city. I like to be part of American political stream. I need your support, your vote. I'm running from City Council. Go for the vote on the March 3rd, 2015, on Tuesday, and elect Mr. Sultan Ahmed, which is known by Sam Sultan Ahmad. Thank you very much. You are great people. God bless all of you, and God bless America. नादिन, तो वक्त हुआ आपका मशहूर प्रोग्राम लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आज के लोकल ग्लोबल में हमने बहुत सी चीज़ें शामिल की हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आती हैं और वो हम आप तक लेकर आते हैं। आइए देखते हैं कि आज हमारे नुमाइंदगान ने किस शहर से क्या रिपोर्ट भेजी है। मुलाज़ा फरमाइए लोकल ग्लोबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आज मेरे साथ हैं। मौजूद मेहमान जनाब मदीर आला पब्लिशर पाकिस्तान लिंक, कहते हैं ना सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर पाकिस्तान लिंक, और आपका नुमाइंदा और आपका मेज़बान सफ़ीर पाकिस्तान। कहते हैं राब्तों का एक नाम, ऑफ कोर्स सफ़ीर पाकिस्तान, जो साल से आपकी खिदमत पेश है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं इसलिए कि कुछ बताएंगे कि क्या होने वाला है। बाईस मार्च को क्या हो रहा है? मंसूरी साहब ने जिसकी बुनियाद डाली थी कि जी रेजोल्यूशन डे पे भी एक प्रोग्राम होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को, हमारी कम्युनिटी को और ग्लोबल कम्युनिटी को पता चले कि व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन डे, क्यों पाकिस्तान में बनाया, क्या वजूहत थी, क्यों इस कंट्री को वजूद हम लेकर आए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ मंसूरी साहब। और आरिफ मंसूरी साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल सर, मैं अभी एक ही दिन हुआ आया हूँ। जी माशाल्लाह पाकिस्तान का दौरा था, बड़ा भरपूर रहा हर लिहाज से, और फिर माशाल्लाह जो रिलीजियस जिम्मेदारियाँ थी वो भी पूरी की, उम्रा किया, मक्का मदीना गए। अल्लाह ताला से दुआ की कि हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, खुशहाल करे, तरक्की दे, मुसलमानों का बोलबाला करे। तो ये सब कुछ बहुत दुआएं मांगी है, होप अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करे। तो सर ये बताएं कि माशाल्लाह मैं तो आउट ऑफ टच रहा, 3 वीक बाहर था, और आप और फातिमा खान विगरसली काम कर रहे हैं डे एंड नाइट। हालांकि फातिमा का बहुत मेजर सर्जरी हुई है, उसके बावजूद फातिमा काम कर रही है, और ये होती है स्पिरिट। और आप माशाल्लाह एक कंपनी के बड़े CEO भी हैं, स्टील फैक्ट्री के, आपके काम भी है और फिर आपका अखबार भी रन कर रहे हैं, फैमिली भी है, उसके साथ आप भी काम कर रहे हैं, दोनों टुगेदर बड़ा अच्छा। तो बताएं क्या प्रोग्रेस, क्या हो रहा है, कर क्या रहे हैं सब आप? जी, जैसे आपको पता है कि कई साल से हम ये प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं। 23 मार्च का यौम क़रारदाद पाकिस्तान,
और पिछले सालों की तरह जिस तरह हमने बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम किए हैं, इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि नहायत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा। जैसा कि आपको पता है, इस प्रोग्राम का मेन मकसद तो ये है कि वो हम उन लोगों की जो कुर्बानियाँ थी, जिनकी सबब पाकिस्तान बना, उनको याद करें, उनको रिकग्नाइज़ करें। एंड यू नो इट्स ट्रिब्यूट टू द फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसके जो दो बड़े मकासद हैं या उससे ज़्यादा, एक तो ये है कि इसमें हम अपनी सकाफ़त, अपना कल्चर, उससे अपनी जो यूथ है, जो कि यंग जनरेशन है, उसको रूशनास करना हमारा एक बहुत बड़ा मकसद इसका ये है। और दूसरा मकसद ये है कि हम कम्युनिटी आउटरीच करें, यहाँ पे जो अमेरिकन कम्युनिटी है उनके साथ बॉन्डिंग करें, उनके साथ कनेक्शन बनाएं, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, मेयर्स, इन सब को, शेरिफ्स को इसमें ला के हम कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करें ताकि हमारे उनसे कनेक्शंस बने। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमने बहुत काम किया है और हमारी ख्वाहिश ये है कि इस दफ़ा आप देखेंगे कि हमने यूथ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं। यूथ को एजुकेट करना, यूथ को बताना कि हमारी क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या कल्चर है, कहाँ से हम आए हैं। तो इस सिलसिले में बहुत हम कोशिश कर रहे हैं। और ये ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये तो यार भाई मुंशी साहब, जो आपने एक नया जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आया, और फातिमा कि जी वी हैव रियली अट्रैक्ट दिस ईयर ग्लोबल कम्युनिटी, जी जी, कि उनको पता चले हमारी सकाफत, हमारे कल्चर क्या, आउटरीच। जी ठीक है ना। इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं कि हम आए, छोले चाट खाए और चले गए, मिलन मिलन हो गई, ठीक है, नहीं। मेरे ख्याल से ये आपका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप न्यू जनरेशन, यूथ, बच्चों को रिकगनाइज़ करेंगे, बुलाएंगे उनको, और ग्लोबल कम्युनिटी को बताएंगे हमारा प्रोग्राम क्या है, जिसमें मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं, कांग्रेस, सेनेट, पुलिस डिपार्टमेंट, मेयर, थिंक टैंक्स, इंटेलेक्चुअल्स, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज, चेंबर ऑफ कॉमर्स को आप इनवाइट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन मंसूरी साहब, आपको तो इस काम के लिए कैसे कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है आपको, नहीं मिल रही है? जी, अल्लाह का शुक्र है, हमें सब तरफ से सपोर्ट है। और हमें कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब हामिद असगर साहब की तरफ से भी माशाल्लाह बड़े अच्छे कौंसल जनरल हैं जी, बड़ी हमारा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। जी, बट इट कम्स डाउन टू इट कि इसकी जो कि एक्सपेंसेस हैं वो लाजिम बात है, हम जो बूथ्स हैं और या मैगज़ीन में एड्स हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दफ़ा ये प्रोग्राम हम एक नई जगह पे कर रहे हैं, फिनिक्स क्लब इन एनाहाइम, डिज्नीलैंड से करीब एक जगह है, फिनिक्स क्लब, बहुत बड़ा, ब्यूटीफुल। आई हैव सीन दैट, आई डिस्कवर्ड दैट। जी जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे फिनिक्स क्लब इन एनाहाइम, विच इज़ जस्ट अ फ्यू मिनट्स फ्राम एंजल स्टेडियम एंड द होंडा सेंटर। ये तकरीब 22 मार्च को सुबह की तकरीब है, सुबह 11 से शाम 7। 22 मार्च ये संडे है, तो ये 23 मार्च की जो तकरीब है, जो कि जिसको हम रेजोल्यूशन डे या रिपब्लिक डे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये इस दफ़ा 22 मार्च संडे को फिनिक्स क्लब में फ्रॉम 11 to 7 है। और इसमें पाकिस्तानी खानों के बूथ, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं, हर किस्म के बूथ होंगे, बुटीक, फैशन, ज्वेलरी, जी जी, खाना पीना, हल्ला गुल्ला, बच्चों की राइड्स, चू ट्रेन, एंड बिल्कुल यू नेम इट। हाँ जी, जबरदस्त भाई माशाल्लाह। कोई गीत संगीत का भी प्रोग्राम किया आपने, नहीं किया सर? माशाल्लाह, इस दफ़ा हमारे पास बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और हमारे पास वोकल में जो है अफजाल हैदर साहब, नौमान खालिद साहब, लीना बेंजामिन हैं, फिर हमने डांस का भी प्रोग्राम है, फिर हमने बैंड्स जो हैं वो अरेंज किए हैं। इस दफ़ा ज़बरदस्त ये है कि इस दफ़ा जब फ्लैग होस्टिंग होगी तो ट्रेडिशनल बैंड वहाँ पे होगा और वो बैंड मार्च करेगा पूरे पवेलियन के अंदर। ये इट्स अ वेरी बिग ह्यूज पवेलियन। ये जर्मन क्लब था, इसको आप फिनिक्स क्लब कहते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुली डन माशाल्लाह, और चारों तरफ से बंद है, बड़ा सिक्योर है। मैं समझता हूँ कि आपने इस जगह का इंतखाब बड़ी अक्लमंदी किया आपने सर। और ऑफ कोर्स इसमें आपकी मदद चाहिए भाई, आप मदद करें, कुछ स्पॉन्सरशिप करें, कुछ आए डोनेट करें, इसको सपोर्ट करें, क्योंकि ऑफ कोर्स ना तो आरिफ साहब का बिज़नेस है ये, ना मेरा बिज़नेस है। हम तो एक सीधे सीधे जर्नलिस्ट हैं और सहाफ़त करते हैं, ख़बरें पहुँचाते हैं, ख़बरें लेकर आते हैं, आपको इत्तला करते हैं, बताते हैं क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। लेकिन आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी आप बैठे हों, सुन रहे हों, देख रहे हों, आप आएँ, इसको सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, बूथ लगाएं, अपने पाकिस्तान के लिए काम करें। ये पाकिस्तान के लिए हम कर रहे हैं। इस दफ़ा ग्लोबल कम्युनिटी को इनवाइट किया है ताकि वो देखें हमारी कल्चर, हमारी सकाफत, उसको हम एक्सपेंड करें। ऑफकोर्स इसमें एक ट्रेड एंड बिजनेस डेवलपमेंट का भी हिस्सा में डाला है कि हाउ टू प्रमोट बिजनेस बिटवीन यूएसए एंड पाकिस्तान, हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट हियर इन अमेरिका एंड हाउ टू प्रमोट अमेरिकन प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। वो भी एक हमारा बूथ होगा इसमें माशाल्लाह, और आपका पाकिस्तान लिंक भी माशाल्लाह इसमें कुछ रोल अदा कर रहा है। जी बिल्कुल। और मैं ऑल्सो ये भी मेंशन करना चाहूँगा,
कि इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि सबसे बड़ा पाकिस्तानी अमेरिकन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। अच्छा, और मैं जस्ट वेरी ब्रीफली मेंशन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत अरसे से एक्टिव है और यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पे पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किए हैं सफ़ीर पाकिस्तान और पाकिस्तान लिंक के ताउन से। उनमें से कुछ प्रोग्राम जो है मैं बस मेंशन करना चाहूँगा वेरी ब्रीफली। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वी हैव डन एक्चुअली, वी आर द लीडर इन एनी वे इन एवरी इवेंट्स। या 14 अगस्त का प्रोग्राम जो है मुझे याद है कि हमने पहले स्टार्ट किया, फिर उसके बाद UFPID बनी, लेकिन अभी 2 साल पहले यहाँ पे स्टेपल सेंटर डाउनटाउन में, जो कि पहली दफ़ा हमारे वेस्ट कोस्ट पे आज तक कभी ऐसी मेन स्ट्रीम जगह पे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे नहीं हुआ, तो वहाँ पे 20,000 आदमी जो हैं वो स्टेपल सेंटर और नोकिया थिएटर और बिल्कुल हार्ट ऑफ द डाउनटाउन में आए और वो प्रोग्राम नहायत शानदार प्रोग्राम था। परेड भी एक्चुअली क्या है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बल्कि आप परेड इज अ क्रिएशन ऑफ, मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ, ओके, यू कैन से दैट आई एम वन ऑफ द इनिशिएटर, बट द परेड इज आफ्टर द क्रिएशन द कांसेप्ट ऑफ द पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। द परेड इज अ वेरी ट्रेडिशनल नेम इन अमेरिका। इफ यू से परेड, बोलेंगे किस दिन की परेड और किस लिए परेड। परेड और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज अ वेरी ट्रेडिशनल नेम। इफ यू आस्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स, they ask where you meet every month, okay, so that is very important। पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुसलसल 3 साल से परेड कर रहे हैं और ये परेड का मकसद है कि लोकल कम्युनिटी को बावर कराना कि पाकिस्तान की इमेज क्या है, पाकिस्तान का मजहब क्या है, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्या है, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, और वो लोग सड़कों पे आते हैं और तालियां बजाते हैं पाकिस्तान के लिए। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात मैं बताऊँ आपको, यकीन करें आप इसको ज़रा गौर से सोचें कि कम से कम 700-800 अमेरिकन किड्स दे कम टू द परेड। वो बच्चे, अमेरिकन बच्चे, उनके माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं कि जाओ पाकिस्तान डे परेड में वॉक करो, बैंड बजाओ, म्यूजिक करो, वॉक करो, अपने पैसे से, अपने खर्चे से आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन बच्चों को घरों से बाहर निकाल के सड़क पे लाना और पाकिस्तान के नाम पे लाना। क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये बहुत ही अहम चीज़ है कि हम जो ये कर रहे हैं ये हमारी कम्युनिटी को बहुत हेल्प करेगा। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन जो है या जो भी कुछ है वो इग्नोरेंस की वजह से होती है। अगर आप जानते ही नहीं किसी पाकिस्तानी को, तो लाजिम बात है आपके जहन में जो पाकिस्तानी के बारे में ख्यालात हैं वो हैं जो कि आपने टेलीविज़न या अखबार पे सुने हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तानियों से मिलते हैं, आप देखते हैं कि ये परेड निकाल रहे हैं डाउनटाउन, हार्ट ऑफ डाउनटाउन में, और सारे अमेरिकन वहाँ जमा हैं सड़कों पर, एक जम गफ़ीर है अमरीकन का, तो जो क्रिएट होता है इमेज, दैट गोज़ अ लॉन्ग वे। इट्स आउटरीच, यू नो, इट्स सीइंग इज बिलीविंग, यू नो। और हमने अगर मैं एक जगह पाकिस्तान प्रोग्राम करते रहे, वहाँ पे हम लोग आपस में मिल रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। You must tell the story. You must tell the real story, the true story about Pakistan. Pakistan is a peaceful country. Pakistan is a part of the terrorism. Pakistan fighting terrorism. Pakistan lost billions of rupees of supporting the terrorism. We are suffering in terrorism. आए दिन धमाके हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं पाकिस्तान में। क्यों? कि हम मगरिब का साथ दे रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं टेररिज्म के लिए। तो उनको असल हकीकत पता होना चाहिए। नादरीन, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि उस दिन 22 मार्च को सारी शाहराएं, सारे रोड्स, एवरी स्ट्रीट गोइंग ऑन वन लोकेशन ऑन फिनिक्स क्लब। आप इस दफ़ा मुजाहरा करें अपनी यूनिटी का, अपने इत्तेहाद का। पावरफुल वॉइस होनी चाहिए आपकी। उस दिन मुझे सही से नज़र आना चाहिए वहाँ पे। मैं जब समझूंगा कि आप सच्चे और हकीकी पाकिस्तानी हैं, और जो लोग साहिब सरवत हैं, साहिब हैसियत हैं, वो आएँ और सपोर्ट करें इस प्रोजेक्ट को। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम आपका दरवाज़ा खड़ना है, प्लीज़ सपोर्ट करें। नो, आप रियलाइज़ करें कि आपने कैसे उसको सपोर्ट करना है, स्पॉन्सर करना है, आना है वहाँ पे, बूथ लगाना है। अब मैं रियली सलाम करता हूँ उन छोटे छोटे ताजरों को, उन छोटे छोटे बिजनेसमैन को, उन छोटे छोटे बुटीक्स ओनर को जो अपने घरों से कारोबार रन करती हैं। वो आती हैं और अपने बूथ लगाती हैं और इसको रौनक देती हैं। मैं सलाम करता हूँ उन ख़वातीन को जो हर साल आ रहे हैं, और उन रेस्टोरेंट को जो हमारे रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, जो मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, वो आते हैं और उसको एक रौनक रखते हैं और पाकिस्तान का टेस्ट देते हैं। और एक दफ़ा म्यूज़िक का तमाशा होगा, म्यूज़िक का बहुत अच्छा, ज़बरदस्त म्यूज़िक होगी, ज़बरदस्त फन होगा, भंगड़ा होगा, डांस होंगे, और आपके कौमी नगमे होंगे, और बहुत कुछ होगा। आपका आना बहुत ज़रूरी है। क्या ख्याल है मंसूर साहब, क्या कह रहे हैं? जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि फैमिली के साथ आइए। ये फैमिली प्रोग्राम है और
हम सबकी फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पे होंगी इंशाल्लाह। और मैं आपको ये बता दूं कि ये इसकी बारे में मज़ीद मालूमात के लिए जी वेबसाइट बनाई आपने माशाल्लाह कोई जी बहुत अच्छी वेबसाइट हमारी है और उसका एड्रेस है www.park-day.com। सबसे जो आसान इसका है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और उसका एड्रेस है www.park-day.com। मैं स्पेल करता हूँ इसको, पार्क PAK डैश डे जो है DAY.com। सो इट्स आप देख लीजिए लिखा हुआ है, नोट कर लें, यहाँ लिखा हुआ है और ये फ़ोन नंबर आ रहा है। ये फातिमा खान जो है वो आपको डील करेंगे, आपके पूरे बूथ वाले जो भी है। आरिफ मंसूरी कॉल करें, मुझे कांटेक्ट करें, मैं तो खैर आपको मुश्किल से मिलूंगा, लेकिन ये फातिमा खान, आरिफ मंसूरी और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं शमा खान वो रहेंगी। आप उनसे राब्ते में रहिए और अपने बूथ बुक कीजिए, अपने हमारी स्पॉन्सरशिप इसमें दीजिए। और मैं एक बार फिर बताऊँगा कि पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिंस 1989 और आपके सामने 2 मेजर मीडिया मौजूद है जो आपकी खिदमत ऑलरेडी कर रहा है। जितने भी इवेंट्स होती हैं आपकी कम्युनिटी की, कहीं भी होती हैं, आप देंगे पाकिस्तान लिंक में उर्दू में और इंग्लिश पाकिस्तान लिंक में खबरें आती हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो प्रोग्राम है जियो का सफ़ीर पाकिस्तान नंबर 1 प्रोग्राम है पूरे अमेरिका में। आपकी ग्लोबल न्यूज़ जाती है यहाँ से, ग्लोबल न्यूज़ आपकी जो भी है, कोई भी कॉन्सुलेट में इवेंट हो रही है उसकी खबर फट नेक्स्ट डे खबर ऑन होती है। CNN से भी ज़्यादा फास्ट हमारी सर्विस है और हम पूरे अमेरिका को कवर करते हैं। तो ये 2 मीडिया आपके सामने है और जहाँ भी पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम आता है और ये 2 मीडिया का नाम आता है पाकिस्तान लिंक और सफ़ीर पाकिस्तान जियो, उसका नाम है सक्सेस। नॉट ओनली सक्सेस, द ग्रेट सक्सेस, द अल्टीमेट सक्सेस। तो व्हाट वी नीड It's just your participation. We would love for you to come join us. Join us, have fun, have fun. फूड भी बड़ा रीजनेबल होगा, मौसम बहुत अच्छा होगा, चारों तरफ सब्जा सब्जा है, बेहतरीन टेंट होंगे वहाँ पे, बैंड होगा, म्यूजिक होगी और सब हिलाली परचम की होस्टिंग भी होगी। कहते हैं कि सब हिलाली परचम क्या है? It's just a piece of cloth, green and white. It's just a piece of cloth, but when we give the name पाकिस्तानी परचम, उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसको फौज सलाम करती है, उसके बड़े बड़े सरबराह ममलिकत सलाम करते हैं। वो है सब्ज़ हिलाली परचम। It's just a piece of cloth, एक कपड़े का टुकड़ा है वो, सब्ज़ और वाइट, लेकिन उसकी अहमियत है 23 मार्च को जब वो सरबुलंद करेंगे। हमारे कौंसल जनरल साहब आएंगे, उसका इनाग्रेशन करेंगे, आप लोग आएंगे, आपको सलाम करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, मैं बस एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि www.park-day.com इस पे सारी मालूमात मौजूद है। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। हज़ारों अफराद का मजमुआ यहाँ पर आपका मुंतज़र होगा। ठाटे मारता हुआ समंदर होगा लोगों का, मैं बता दूँ आपको। तिल धरने की जगह नहीं होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आ जाएँ, पहुँच जाएँ, बस पहुँचे वहाँ पे। और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अगर अपना बिज़नेस प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज प्रमोट करना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पर बूथ्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। हमारे पास मैगज़ीन मौजूद है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास बैनर्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पे एडवर्टीज़मेंट। तो अगर आप बहुत अफ्लुएंट पाकिस्तानी ऐड आ सकते हैं, मैगज़ीन में ऐड है। तो जी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि बहुत एफ्लुएंट कम्युनिटी है सदर्न कैलिफोर्निया में, अगर आप इसको अपना प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको शायद ना मिले अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सक्सेसफुली सेल करने के लिए। सो प्लीज़ कम जॉइन अस ऑन द 22nd of March. Be there, don't miss it. सिटी ऑफ शिकागो एल्डरमैन 50th वार्ड की उम्मीदवार जहरा कादरी के एजाज़ में एक शानदार फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा मकामी अमेरिकन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और जहरा कादरी की भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। जहरा कादरी का ताल्लुक मारूफ इल्मी और अदबी घराने से है। आप मारूफ शायर हामिद अमरोही की साहबजादी हैं। इसके अलावा 16 साल से शिकागो में कम्युनिटी की खिदमत कर रही हैं। जिम होप्स और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जहरा कादरी की खिदमत काबिल ज़िक्र हैं। फंड रेजिंग डिनर में निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ कम्युनिटी शख्सियत अनवर रूमी ने अंजाम दिए। इसके अलावा राना जावेद, डॉक्टर आबिदुल्ला गाजी,
अली बख्तियारी, राजा याकूब, सदर MCC, क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमाओं इशत अल्लाह दिता, आसिफ सलीम, हारिस उस्मानी, सदरुद्दीन नूरानी और इसके अलावा आमिर मिर्ज़ा, हुमा अहमद, अनवर रूमी और हामिद अमरोही ने अपने ख्यालात का इजहार किया। शिकागो के मारूफ सिंगर शहजाद अहमद और लाइबा अली ने जहरा कादरी इलेक्शन कैंपेन का तराना सुनाया। इस कामयाब फंडरेजिंग डिनर में मीडिया के नुमाइंदों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। जहरा कादरी ने खास तौर पर प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान जियो टीवी के अंसार रिजवी का शुक्रिया अदा किया। जी नाज़रीन, मैं हूं अंसार रिजवी, नुमाइंदा सफीर पाकिस्तान शिकागो। इस वक्त मैं दीवान एवेन्यू शिकागो में मौजूद हूं, जहां पर 50th वर्ल्ड एल्डरमैन की उम्मीदवार जहरा कादरी के लिए एक बहुत ही कामयाब फंडरेजिंग डिनर का इनेकाद हुआ। और इस वक्त मेरे साथ 50th वर्ल्ड शिकागो एल्डरमैन की उम्मीदवार मोहतरमा जहरा कादरी साहबा मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी इलेक्शन के सिलसिले में क्या तैयारियाँ हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड कि आप पहली बात आप हमारे फंक्शन में आए हैं और बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया है। और हमने कम्युनिटी की काफ़ी 15-16 साल से खिदमत की है और हम लोग यहाँ शिकागो में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम यहाँ की सियासत में आगे आएँ, क्योंकि हमारे लोगों को यहाँ के बेनिफिट्स का अंदाज़ा नहीं है। और यही बात अभी हमने अपनी स्पीच में भी यही कही है कि $1.3 मिलियन जो ऑल्डरमैन के हाथ में दिया जाता है एवरी ईयर कि कम्युनिटी के ऊपर ख़र्चा करें, उसमें हमने कमीशन का तैयारी शुरू कर दी है। हमारा यह है कि हम $2 लाख हर साल हर कमीशन को देंगे, ताकि ये पैसा सिटी का है और सिटी के टैक्स का पैसा है, तो ये पैसा लोगों के ऊपर ख़र्चा होना चाहिए। ये लोगों को बात बिल्कुल पता ही नहीं थी, तो हमने लोगों को एजुकेट करना है और यही कह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग पॉलिटिक्स में यहाँ पे आएँ। और हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमारा हक बनता है कि बच्चों का फ्यूचर हमारे अच्छा होना चाहिए और हम लोगों को अभी आगे बढ़ना चाहिए। यही आपने सब लोगों से कमेंट सुने और हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी की कि दोनों ने मिलके हमारे लिए काफ़ी अच्छा पैसा जमा किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ और सारे हाज़रीन के साथ ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखें कि इलेक्शन में 24 तारीख को हमें कामयाबी मिले। और दुआओं में बहुत बड़ी ताकत है और अल्लाह मियाँ उसी के साथ होता है जो हिम्मत करके आगे निकलता है। और हम निकले हैं, हमारे साथ सब लोगों की दुआएं हैं। और अगेन मैं दोबारा से आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि दुआओं में बहुत बरकत है और दुआएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें कि हम ऑल्डरमैन यहाँ के 50th वार्ड में इलेक्ट हो जाएं और इंशाल्लाह ताला फिर हम धूमधाम से अपनी कम्युनिटी की और ज़्यादा खिदमत करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जियो टीवी की, अंसार साहब हमारे पास आए हैं और आप हमारी मदद करें और इंशाल्लाह ताला जो हमसे होगा हम करेंगे। मैं अगेन आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड कि सफ़ीर पाकिस्तान जियो टीवी इज़ हियर। थैंक यू। मेरा नाम आमिर मिर्ज़ा है और मैं यहाँ एक फंड रेजिंग डिनर हुआ है उसमें आया हूँ। जहरा कादरी जो 50th वर्ल्ड के ऑल्डरमैन के लिए खड़ी हुई हैं, शी हैज़ बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब एक्चुअली। She has been serving relentlessly for the last 15 years for the community. She has been serving like more than 3,500 families on an annual basis, and she has generated a lot of funds for the support of the community. And I'm pretty sure she's going to win this election. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा अहमद है। मैं यहाँ पर आई हुई हूँ आज एज प्रेसिडेंट ऑफ लायन क्लब रॉजर्स पार्क शिकागो USA to support a community leader who is the owner of Zam's Hope. She has done community service for 16 years now. शुक्रिया अंसार। इंतज़ामात तो खैर आप देख रहे हैं। जहरा को सपोर्ट करने की एक वजह ये है कि ये 16 साल से आवाम की, लोगों की, कम्युनिटी की खिदमत कर रही हैं। और मुझे याद है कि 2005 में जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था तो जहरा वो लड़की थी जो ऑल द वे यहाँ से गई और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में इसने वहाँ इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। I'm very proud to support Zahra Qadri. I have known her for many years and she is the most hard-working woman I've ever met in my life, and I'm really proud to be a part of this campaign. अस्सलाम वालेकुम, मैं हामिद अमरोही आपसे मुखातिब हूँ। मैं मेरी बेटी ज़हरा कादरी इलेक्शन लड़ रही है, उसके लिए आया हूँ। उसके लिए दुआइया एक शेर पेश करता हूँ। मेरी बच्ची की लाज रख या रब, मेरी बच्ची की लाज रख या रब, नाम लेवा तेरे हबीब की है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसे कामयाब करे और ये
लोगों की तवक्कात पर पूरी उतरे और लोगों का काम करे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं दीवान एवेन्यू शिकागो में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर 50th वार्ड एल्डरमैन की उम्मीदवार ज़हरा कादरी के लिए एक इंतहाई कामयाब और शानदार फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया और इस फंड रेजिंग डिनर में शिकागो के मौजूदीन ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। अंसार रिजवी, सफ़ीर पाकिस्तान, शिकागो। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा हम जानते हैं कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन को साउथ एशियन को अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में दाखिल होना चाहिए ताकि वो अपने हुकूक, अपने राइट्स को मनवा सकें, अपनी बात असम्बली में, सेनेट में, कांग्रेस में उठा सकें, सिटी कौंसिल में अपनी बात उठा सकें, सिटी के मसाइल को वो हल कर सकें। सुल्तान अहमद जो है वो सिटी ऑफ सिटी से सिटी कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये भी कामयाब हो ताकि हमारा एक और दूसरा सिटी कौंसिल जो है वो इस एरिया में आ जाए। आज मेरे साथ सुल्तान अहमद है मेरे स्टूडियो में। आपको पता है कि सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा हर पाकिस्तानी को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ख्वाह वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ हो, अगर खुसूसन वो पाकिस्तानी है तो दिल खोल के हम उसको पब्लिसिटी देते हैं ताकि वो इस प्लेटफॉर्म को कामयाबी से इस्तेमाल करे, उसको यूज़ करे, नो प्रॉब्लम। अगर वो पॉजिटिव है और अच्छे काम करे तो सुल्तान अहमद से बातचीत करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। सुल्तान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सफ़ीर पाकिस्तान का मैं बहुत मशकूर हूँ कि बहुत अरसे के बाद मुझे उन्होंने मौका दिया। मेरा जो मेन प्लान ये है कि मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 28 ईयर्स हो गए हैं। 25 साल से मैं वेट कर रहा था, देख रहा था कि हमारे लोग इस पॉलिटिकल स्ट्रीम में नहीं जाते। मैं ऑलरेडी सिटी में हूँ, मैं आई एम वाइस चेयर फॉर द स्ट्रीटो लेट फ्रीडम रिंग के आप वाइस चेयर हैं? जी, मैं लाइट फ्रीडम रिंग कमेटी का वाइस चेयर हूँ और इस कमेटी का जो काम है वो आई एम वेरी ऑनर्ड कि इस कमेटी के ज़रिए हमारे अमेरिकन जितने भी ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं वो मेरी कमेटी के नीचे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। मेरे पास 10 लोग हैं और मैं प्राउड ऑफ हूँ कि भाई मुझे 4 जुलाई को बेल रिंग देने का ऑनर हासिल है, जिसमें 13 लोग दे चूज़ आउट ऑफ 50,000 पीपल। सो माई नेम इज़ देयर, सो आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये क्यों इरादा किया कि आप सिटी कौंसिल के लिए जाएं? असल में मुझे यहाँ रहते हुए स्ट्रीटोज़ में 11 साल हो गए हैं और मैंने यहाँ देखा कि हमारे यहाँ लोग इस साइट पे पार्टिसिपेट नहीं करते। इस सिटी में मूव हूँ पिछले 11 साल पहले। आई हैव सीन द सिटी ऑफ स्ट्रीटो इज़ अ ग्रेट सिटी। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल स्कूल एंड वी हैव अ ग्रेट लाइब्रेरी। मेरे बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब मैं आया हूँ द पीपल सेड अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट इज़ ट्रू। बिलीव करें कि आई वांट टू गिव बैक टू समथिंग टू अमेरिका। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए कम्युनिटी से? मुझे कम्युनिटी से सिर्फ ये सपोर्ट चाहिए है कि हमारे लोग, अगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन एक ऐसी कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, अगर वो चाहें तो वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी लोग स्ट्रीटोज़ में रहते हैं वो वोट के लिए जाएं। एक आदमी अगर 10 लोगों को बोले तो इंशाल्लाह वी मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम द वोट। और मेरे साथ इस मरतबा अमेरिकन, फ़िलिपिनो कम्युनिटी, कोरियन कम्युनिटी, चाइनीज़ कम्युनिटी, मुझे यहाँ पर एज ए अपॉइंटी कमिश्नर बनाया था मिस्टर जोसेफ चो ने। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर डॉक्टर जोसेफ चो। और इस मरतबा मुझे तकरीबन 15 सिटी कौंसिल, असम्बली मैन, स्पेशली Sally Harris, Assemblywoman, and Mr. Rudy Bermudez, he has also ran for 2 times successfully Assemblyman. He has endorsed me. I got 15 endorsement this time. Inshallah, I'm very much positive for this time. अच्छा, माशाल्लाह, ये बताइए कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं अपने लोगों को, मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं जैसे इलेक्ट होता हूँ तो मैं अपने स्ट्रीटोज़ के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें से लोगों को मैं अपने कमिश्नर अपॉइंट करूंगा ताकि वो हमारी कम्युनिटी को, हमारे मुल्क को, हमारे कंट्री के नाम को मशहूर करें। आप काफ़ी लोगों से को देख रहे हैं आज। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि देखिए, इस कैंपेन में मेरा बजट था $50,000। नाउ इट हैज़ गॉन टू $90,000 क्योंकि स्ट्रीटो इज़ नॉट अ स्मॉल सिटी लाइक आर्टिशिया। स्ट्रीटोज हैज़ ए 50,000 पॉपुलेशंस। देखिए, मुझे कम्युनिटी से सपोर्ट ये चाहिए कि पहली तो चीज़ है वॉलंटियर। जितने भी लोग मुझे अपना टाइम दे सकते हैं वो मुझे वॉलंटियर चाहिए। मैंने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त 8 वॉलंटियर काम कर रहे हैं। ठीक है आपको। और दूसरी क्या चीज़ वॉलंटियर चाहिए आपको? चीज़ मुझे कम्युनिटी से ये चाहिए कि हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। मैं चाहता हूँ कि कम अज़ कम मेरे हाथ में बैकअप में $40 से $50,000 हो ताकि दूसरे लोग जो हैं $200,000 का बजट लेके चल रहे हैं। और आई एम अ वेरी स्मॉल बिजनेसमैन, सो आई एम लुकिंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू। चले, बड़ी खुशी है। नाज़रीन ये चाह रहे हैं कि इनको वोट दिया जाए, इनको वॉलंटियर चाहिए, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये एक बेहतर कैंडिडेट हैं और ये कम्युनिटी के लिए उन्होंने अच्छे काम किए हैं,
अच्छे काम करते रहें, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ें, इनको सपोर्ट करें, फ़ंड दें, इनको वोट दिलवाएं, इनको वॉलंटियर दें। ये आपके पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का ताल्लुक़ है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इनको सपोर्ट करेगी। कोई खुसूसी मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए? Dear friends and family and Pakistani American fellows, my name is Sultan Ahmed. Most of you know me as a Sam. I'm running for Cerrito City Council. I'm the first Pakistani American who's running from this city. I am proud to be American and I like to serve the people. Cerrito is a great city. I moved here because of the school district and my children are getting education. Cerrito has one of the best library. And I came to this country last 28 years. I like to be part of American political stream. We are great people. We are great Pakistani. If we want, we can achieve anything. But we need a unity. Unless we don't have a unity, we cannot achieve anything. I like to request you, all of you, please, I need your support, your vote. I'm running from City Council. If you know anybody from City of Cerrito, please call them and tell them go for the vote on the March 3rd, 2015. On Tuesday, they must go for the vote and elect Mr. Sultan Ahmed, which is known by Sam Sultan Ahmad. Thank you very much. You are great people. America is a great country. We should be faithful for this country. I'm proud to be American. God bless all of you and God bless America. Pakistan Day Mela and Festival on Sunday, March 22nd, 11 a.m. to 7 p.m. at Phoenix Club in Anaheim near Honda Center and Angels Stadium. A fun day event for the entire family, games and rides, talent competition, skits and performances, food court and booths for shopping, music and entertainment by top Pakistani artists. Mark your calendar, Sunday, March 22nd for booth reservation and sponsorship. Please call 310-890-0551, 909-576-2982. Brought to you by Pakistan Link and Safire Pakistan. My name is Sultan Ahmed. Most of you know me as a Sam. I'm running for Cerrito City Council. I'm the first Pakistani American who's running from this city. I am proud to be American. Cerrito is a great city. I like to be part of American political stream. I need your support, your vote. I'm running from City Council. Go for the vote on the March 3rd, 2015 on Tuesday and elect Mr. Sultan Ahmed, which is known by Sam Sultan Ahmad. Thank you very much. You are great people. God bless all of you and God bless America. कहते हैं कि पाक सर ज़मीन शादबाद। जी हाँ, पाक सर ज़मीन शादबाद के लिए हम तैयार हैं। 22 मार्च को ऑफ कोर्स कहाँ, फिनिक्स क्लब में कटेला के पास होंडा सेंटर के बिल्कुल बिहाइंड। इट्स ए ब्यूटीफुल, वेरी ग्लैमर, ग्रीन, क्लोज, नाइसली डन सेंटर। इस प्रोग्राम में तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग हम मुतवक्का कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचेंगे और ये प्रोग्राम एक नए अंदाज में होगा।
एक नए कॉन्सेप्ट के साथ होगा। ये प्रोग्राम ग्लोबल है, इसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी के लीडर्स, उनकी एसोसिएशन, उनके म्यूजिशियन भी शिरकत कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं 23 मार्च का प्रोग्राम है, लेकिन हम कर रहे हैं इसको 22 मार्च को, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि हम दूसरी अक़वाम को बता सकें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान कितना अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान कितना पेट्रियाटिक मुल्क है, पाकिस्तान के लोग दुनिया भर में कहाँ कहाँ अपने काम अंजाम दे रहे हैं। सो इस प्रोग्राम में ज़रूर आइए, शिरकत कीजिए, इसको कामयाब बनाइए। इसमें बूथ हैं, फूड फेस्टिवल हो रहा है, पाकिस्तान फूड फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान फैशन शो है, इसमें पाकिस्तान कल्चर शो है, इसके अंदर दिस लॉट ऑफ थिंग, बच्चों के मुकाबले हैं, मजमून नवीसी का, किरत का, नात का, ये सारी चीज़ें हम पुट टुगेदर कर रहे हैं इस 23 मार्च के मौके पे। याद रखिए 22 मार्च, all the freeways, all the road, all the streets, all the avenues is going to Phoenix Club, Katela. Off the 57 freeway, behind the Honda Center, lot of parking, खूबसूरत एम्बियाज, you're gonna love it. अभी कॉल कीजिए, बूथ बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, बहुत फास्ट लिमिटेड बूथ हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के मौके पे बूथ दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। और हाँ, सफ़ीर पाकिस्तान प्रोग्राम देखते रहिए। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जब ये प्रोग्राम आ रहा होगा। आई एम गोइंग इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एंड सऊदी अरेबिया। तो ये मेरा लंबा ट्रिप है और कुछ मेरे मंसूबे हैं, कुछ प्रोजेक्ट हैं। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान के साथ रहिए, आपका अपना प्रोग्राम है, आपकी आवाज़ है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका खादिम ये 20-25 साल से आपकी खिदमत में पेश होता है हर हफ्ते को। ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आपके ताउन से, आपकी मोहब्बत से और आपके सपोर्ट से ये प्रोग्राम चलता रहेगा और चल रहा है इंशाअल्लाह। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार खान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।